Shaji, so today we'll be doing limited companies, financial statement of limited companies. Okay. So first of all, discussing some theory, features of a limited company, separate legal entity distinct from its owners, meaning owners or company दो different entities हैं. ठीक है. Board of directors elected by the shareholders are responsible for the management. Yani this is run and controlled by the board of directors. Shareholders can easily transfer their shares कहाँ पे जी? Stock exchange में. या फिर अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स है तो प्राइवेटली आगे आगे हम उसको देखते हैं. नंबर ऑफ ओनर्स आर ग्रेटर देन वन विद नो अपर लिमिट. ऑब्वियसली एक से ज़्यादा ही होंगे. एंड इट दिस बोथ द कंपनी लिमिटेड कंपनीज हैव लिमिटेड लाइबिलिटी विच मीन्स देयर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द बिजनेस एसेट्स ओनली. यानी जो भी वो इन्वेस्ट करेंगे सिर्फ उतना ही एट स्टेक है इफ द कंपनी इज अनेबल टू पे बैक. देयर पर्सनल एसेट्स वोंट बी एट स्टेक. ठीक है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट एंड पब्लिक. प्राइवेट कंपनी जो है ऑफर शेयर्स टू फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, वेयर एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर्स जो है वो जनरल पब्लिक ऑफर करती है. शेयर्स आर नॉट एक्सचेंज इन स्टॉक मार्केट क्योंकि स्टॉक मार्केट में पब्लिक को आप शेयर्स इशू करते हैं. ठीक है. दैट्स व्हाई स्टॉक एक्सचेंज पे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स इशू होते हैं. देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में द कंपनी नेम हैज टू एंड विद लिमिटेड और एलटीडी, वेयर एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी इट इज पीएलसी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी पूरा. देन द ऑथराइज शेयर कैपिटल जो लिमिट है दैट इज लेस देन $50,000 फॉर प्राइवेट कंपनीज. यानी ये कंपनीज इतना ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकती. वेयर एज ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैज टू बी ग्रेटर देन $50,000. एंड विल डिस्कस व्हाट दिस मींस. ठीक है. अच्छा, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. ऑर्डिनरी जो होते हैं दोनों ही शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं. दे कैन बी कंसिडर्ड एज ओनर्स ऑफ द कंपनी. Now, ordinary shareholders का रिस्क ज़्यादा होता है. Why? Because they receive variable dividends. ठीक है, कभी मिल रहा होगा कभी नहीं मिल रहा होगा. Whereas preference shareholders का in case the company earns profit, they will have a fixed rate of dividend. ठीक है, no matter what the profit is, उनको उस profit पे fixed rate मिल रहा होगा. But ordinary shareholders क्योंकि risk ज़्यादा है, therefore they are entitled to vote in the annual general meeting. Whereas preference shareholders का there is no right in the annual general meeting. यानी they cannot vote on who will be the board of directors, किसको hire करना किसको fire, something like that. ठीक है. Given dividends after preference shares, that's why इनका risk ज़्यादा है. और preference shareholders को obviously before ordinary shareholders dividend मिल जाता है. Last ones to receive their share capital if the company goes bankrupt या in the case of liquidation. अगर कंपनी खत्म हो रही है तो फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को सबसे एंड पे उनकी इन्वेस्टमेंट वापस मिलती है. Whereas preference shareholders को इनसे पहले मिल जाती है. ठीक है. So the risk of preference shareholders is much less than ordinary shareholders. ठीक है. अच्छा, now let's talk about what these different share capital के forms mean. Authorized share capital का मतलब है maximum amount of share capital company is allowed to issue. इससे ज़्यादा आप issue नहीं कर सकते. Issued share capital on the other hand is the amount of share capital that is actually issued and it has to stay within the limits. यानी authorized share capital से ज़्यादा नहीं हो सकता ये. इसमें जो है we have two things. Called up capital जितना कंपनी ने has asked from its shareholders जितनी भी amount है उसमें से जितना पे हो जाएगा that will be known as paid up capital, part of called up capital where money has been received, and the one that is remaining, for example 50,000 या चलो $10,000 उसने called up capital है उसमें से 8,000 capital receive हो चुका है. 2,000 will still be calls in arrears. उसको हम कहते हैं calls in arrears. जो part of called up capital is yet to be received, right? अच्छा, then comes dividends. Dividends को in other words कहते हैं जी share of profits. So this is the share of profit that the shareholders receive, right? Return, basically it's a return to the shareholders on their investment, and it can be expressed in two forms. Normally expressed as $X per share. For example, $0.1 for every share held on number of shares. इस केस में आपने नंबर ऑफ शेयर्स निकालने क्योंकि वो हर शेयर पे डिविडेंड बता रहे हैं. सो लेट्स से 100 शेयर्स हैं तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1 क्योंकि 0.1 पर शेयर का रेट है. And it can also be expressed as a percentage. For example, 5% ordinary or preference share dividend on share capital. This will be applied on the share capital, यानी value of the share capital and not the number of shares. ठीक है. So there is a difference. जब per share आपको dividend होगा वो आपने number of shares पे multiply करना है और जब percentage में होगा वो आपने value of share capital जो dollar terms में होगा total उस पे apply करना है. ठीक है.
देन इंटरम डिविडेंड पेड हाफ वे थ्रू द ईयर, जो साल के बीच में आप पे कर देते हैं. फाइनल डिविडेंड पेड एट द एंड ऑफ द ईयर. Proposed dividend, a dividend proposed for this year will actually be paid next year, and last year's proposed dividend will be paid this year. So ये चीज आपने तब ध्यान में रखनी when we are making our statement of changes in equity, क्योंकि हम उसमें वो चीज पे करेंगे जो लास्ट ईयर प्रपोज की थी in case of dividends, right? Then comes retained profit, profit that is not apportioned or divided or distributed and remains with the company. यानी retain का मतलब क्या होता है? अपने पास रखना. So some profit is distributed, divided in and किस तरह divide कर सकते हैं? We'll look in a while. जितना आप अपने पास रख लेंगे after distributing, that will be retained profit. ठीक है. अब टू टाइप्स के रिजर्व होते हैं कंपनीज के, रेवेन्यू एंड कैपिटल. रेवेन्यू रिजर्व्स जो होते हैं वो क्रिएटेड बाय प्लाइंग बैक प्रॉफिट्स इनटू द कंपनी, यानी अपने ही प्रॉफिट्स को यूज करके वो बना रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व व्हिच हैज नो स्पेसिफिक पर्पस, इट्स जस्ट देयर टू फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस. स्पेसिफिक रिजर्व जो होंगे, रिजर्व क्रिएट टू फुलफिल अ स्पेसिफिक पर्पस. फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट रिजर्व, यानी ये रिजर्व में आप इसके पैसे लगा रहे हैं या प्रॉफिट रिटेन करते हैं कि वी विल बाय अ सर्टेन नॉन करंट एसेट यूजिंग दिस, यानी आपने स्पेसिफिक कर दिया पर्पस को. Whereas capital reserves जो होते हैं, these are non-distributable reserves, like unlike the revenue reserves, for the purpose of maintaining capital base. For example, जी share premium revaluation reserve. अच्छा, share premium क्या होता है? If you issue shares at a price exceeding the face value. For example, जी एक शेयर $1 का है, बट आपने इशू उसको 1.5 पे किया है. इस केस में ये जो 0.5 एक्सेस में है, दैट विल बी नोन एज शेयर प्रीमियम. एंड शेयर प्रीमियम क्योंकि कैपिटल जनरेट या शेयर कैपिटल इशू करने से हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स अ कैपिटल रिजर्व. रीवैल्यूएशन में आप रीवैल्यू करते हैं अपने नॉन करंट एसेट्स को. इफ दे गो अप इन प्राइस तो फिर आप कहेंगे दिस रीवैल्यूएशन हो गई इनकी, यानी रीवैल्यूएशन रिजर्व में जो भी उन फॉर एग्जांपल 100,000 का एक नॉन करंट एसेट था, इट हैज बीन रीवैल्यू टू 120,000. ये जो 20,000 से ऊपर गया है उसकी वैल्यू, दैट इज अ रीवैल्यूएशन रिजर्व, राइट? अच्छा, अब फाइनेंसिंग ऑफ अ कंपनी कैसे कैसे हो सकती है जी? इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करके पैसे जनरेट कर सकती है. प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके जनरेट कर सकती है. लोन फ्रॉम बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूशंस. सेलिंग ऑफ एक्सेस नॉन करंट एसेट्स, जो आपके पास इतने यूज के नहीं है नॉन करंट एसेट्स, आप उनको भी बेच के यू कैन फाइनेंस योर एक्टिविटीज. देन कम्स डिबेंचर्स. अब डिबेंचर क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन टेकन फ्रॉम द जनरल पब्लिक, यानी कंपनी जो है वो जनरल पब्लिक से लोन लेगी और उनको वो बेसिकली एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करेगी. ठीक है. डिबेंचर होल्डर्स आर लाइबिलिटी, यानी जनरल पब्लिक जो लोन देगी वो ओनर्स नहीं बन जाएंगे, वो उसकी लाइबिलिटी होगी. एंड इंटरेस्ट मस्ट बी पेड रिगार्डलेस ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी. एज वी सॉ कि डिविडेंड्स जो है वो तो आपने प्रॉफिट होगा तो देंगे ना, क्योंकि इट्स अ शेयर ऑफ प्रॉफिट. इंटरेस्ट जो है वो आपने रिगार्डलेस पे करना है. आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, डजंट मैटर. यू हैव टू पे द इंटरेस्ट टू योर डिबेंचर होल्डर्स. ड्यू टू बी पेड आफ्टर द ईयर इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी, यानी जो आपकी जो अगर ऐसी डिबेंचर है जो एक साल से ज़्यादा बाद पे करना है तो दैट इज़ अ नॉन करंट लाइबिलिटी. एंड जो ऐसी लाइबिलिटी होगी यानी विच हैज़ टू बी पेड विद इन अ ईयर, दैट विल बी करंट लाइबिलिटी. डिबेंचर पे देयर इज अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. डिबेंचर होल्डर्स आर रीपेड बिफोर एनी शेयर होल्डर इन केस ऑफ क्लोजर. ठीक है. वालेकुम अस्सलाम जी. All right, now comes types of preference shares. Cumulative preference shares, cumulative निकले accumulative से. So basically, cumulative में see, when a company does not, if you are a cumulative preference shareholder and the company earns no profit in 1 year, let's say, तो आपका जो share of profit है वो accumulate हो जाएगा and it will be carried forward to the next year. ठीक है. और फिर आपको next year इस साल का भी मिलेगा, जिस साल आपको नहीं मिल सका accumulate हो गया basically वो, and next year का भी मिलेगा. Whereas non-cumulative में if there is no profit in a particular year, then it will not be carried forward. फिर आपको इस साल का नहीं मिलेगा जिस साल नहीं मिल सका. ठीक है. Cumulative में it will be carried forward. Then participating may have the right to participate in surplus profits of the company during liquidation of after the company had paid to the other shareholders. हो सकता है कि excess profits आपको हो जाए तो participating preference shareholders को उस केस में भी पैसे मिलेंगे. बट नॉन पार्टिसिपेटिंग को दे विल नॉट गेट एनी सरप्लस प्रॉफिट्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन. उनको उतना ही मिलेगा जो उनकी इन्वेस्टमेंट है.
राइट। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो एडिशनल आपको नजर आएंगी, और समटाइम्स वो भी ज़्यादा नहीं है, डिबेंचर इंटरेस्ट नजर आएगा, बाकी तीनों चीज़ें आपको कम नजर आएंगी, ठीक है। डायरेक्टर्स रिन्यूमरेशन विच मीन्स इट्स अ सैलरी, बिकॉज रिमेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रनिंग ऑफ द बिजनेस, तो आप उनकी सैलरी को यही कहते हैं। ऑडिटर्स रिम्यूनरेशन, कंपनीज होती हैं उन पे मैंडेटरी होता है कि वो अपनी स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाएं, तो उसकी जो फीस होगी आपने वो भी इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में ट्रीट करना है। और कॉर्पोरेशन टैक्स, ऑब्वियसली कंपनीज पे एक रेट लगता है टैक्स का, वो भी टैक्स ऑब्वियसली इज एन एक्सपेंस फॉर अ कंपनी, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, international accounting standards one requires that companies should present a statement of changes in equity as a separate statement, यानी कि अभी हम देखेंगे भी कि कैसे बनाते हैं, इसमें जो भी चेंजेस होंगे ड्यूरिंग द ईयर वो आपने इनकॉर्पोरेट करने हैं इक्विटी में सिर्फ, ठीक है, वो आपने इनकॉर्पोरेट करने हैं। इट इक्विटी क्या होती है? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनीज इक्विटी का मतलब है ऑल द शेयर कैपिटल एंड ऑल द रिजर्व्स, नॉट योर नॉन करंट लाइबिलिटीज। हाँ, अगर आपसे वो कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड में देन यू ऐड द नॉन करंट लाइबिलिटीज एज वेल, वो फिर दोनों टाइप की इन्वेस्टमेंट आ जाएंगी आपकी, अपनी भी इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड भी जिसे कह सकते हैं, जिसमें शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स प्लस योर नॉन करंट लाइबिलिटी, बट इक्विटी में इट्स ओनली शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, राइट। शोज, अच्छा खैर, लेट्स टॉक अबाउट दिस। Name of the company, this is the format, statement of change in equity for the year ended. All right, you start off with your opening balance, यानी साल के शुरू में कोई ना कोई इनके ये balances पड़े होंगे। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, यानी यहाँ पे आपने बेसिकली ऑल द शेयर कैपिटल एंड ऑल द रिजर्व्स को लिस्ट डाउन करना है। यानी फॉर एग्जांपल अगर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होता तो मैं यहाँ लिखता, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता तो मैं यहाँ लिखता, एटसेट्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, देन उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो आपका इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा, अब उसकी एंट्री रिटेन्ड अर्निंग्स में होगी, क्योंकि प्रॉफिट इज बीइंग एडेड टू योर रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। और अच्छा, अब हमने हॉरिजॉन्टली भी ऐड करने हैं एंड इन दी एंड वर्टिकली भी ऐड करने हैं, तो दिस इज द सेम अमाउंट एज रिटेन्ड अर्निंग्स। देन इशू ऑफ शेयर कैपिटल, अगर आप शेयर कैपिटल इशू करते हैं तो उससे दो चीज़ें इफेक्ट हो सकती हैं, शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा, और अगर आपने एक्सेस फेस वैल्यू से एक्सेस पे इशू किया है तो फिर आपका शेयर प्रीमियम भी इंक्रीज होगा एंड टोटल इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी आपकी। देन ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व आप कहाँ से ट्रांसफर करते हैं जी? जो भी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं वहां से यू आर ट्रांसफरिंग, या जो भी प्रॉफिट की अमाउंट है वहां से आप ट्रांसफर करते हैं, दैट्स वाई रिटेन्ड अर्निंग्स पे नेगेटिव है। एंड जनरल रिजर्व, लेट से जी 1000 ट्रांसफर किया है तो 1000 जनरल रिजर्व में ऐड हो जाएगा एंड 1000 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देयरफॉर नेट इफेक्ट जीरो है इसका, ठीक है, ये मतलब होता है। देन डिविडेंड्स पेड, कहाँ से डिविडेंड्स पे करते हैं? शेयर ऑफ प्रॉफिट कहलाते हैं डिविडेंड, दैट्स व्हाई रिटेन अर्निंग्स अगेन सब्ट्रैक्ट हो रहा है एंड नेट इफेक्ट भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। नाउ ये जो फाइनल आंसर आएगा, यू कैन ऑल्सो वेरीफाई कि यार ये काम ठीक किए ये नहीं, ये तो आप टोटल इक्विटी में वर्टिकली भी ऐड करके देख ले तो दिस अमाउंट शुड बी इजी। एंड आप क्लोजिंग, सबके क्लोजिंग बैलेंसेस किस तरह आएंगे? फॉर एग्जांपल इसको हमने ऐड किया, फिर इसको, राइट, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, यानी वर्टिकली सबको ऐड करेंगे। एंड व्हेन यू विल ऐड हॉरिजॉन्टली ए बी बी सी सी प्लस जी डी, इट शुड बी इक्वल टू जी जी, तो वर्टिकली भी जी जी होना चाहिए और हॉरिजॉन्टली भी जी जी होना चाहिए, इट शुड बी द सेम, राइट। ये है आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, वी आर नॉट इंक्लूडिंग एनी नॉन करंट लाइबिलिटीज हियर, राइट। अच्छा, नेम ऑफ कंपनी, दिस इज दिस एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अगर देखो क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी उसने ऑलरेडी मांग लिए, फिर आपका काम बहुत आसान हो गया। ऊपर वाली सिचुएशन तो वही है, सेम एज सोल ट्रेडेड पार्टनरशिप, वो बैलेंस शीट आपकी वैसी है, बट जो इक्विटी सेक्शन होगा उसमें आपने सारे शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स रिकॉर्ड करने, लिस्ट डाउन करने, ठीक है। लेट मी शो यू हाउ। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिटेन, जितने भी हैं, एंड देन उसके क्लोजिंग बैलेंसेस, क्योंकि दिस इज यूजुअली मेड एट द क्लोजिंग डेट, तो आपको सिर्फ ये एक्सट्रैक्ट क्लोजिंग, मतलब जो एक्सट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का इक्विटी सेक्शन वाला, ये सिर्फ मैंने आपको बता के दिखाया, ठीक है। फिर आप उसकी क्लोजिंग बैलेंस से रिकॉर्ड करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले हैं ए बी बी सी सी डी डी, एंड इनका आंसर शुड बी इक्वल टू द टोटल ऑफ इक्विटी, ठीक है। सो ये बैलेंस शीट में सिर्फ आप ये करते हैं। सो इन दिस केस इसका क्योंकि शेयर कैपिटल रिजर्व्स इंक्लूड हो जाते हैं, दैट्स व्हाई इनकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सिर्फ इक्विटी सेक्शन, या जिसे हम शेयर होल्डर्स फंड्स भी कह सकते हैं, या जिसे हम शेयर कैपिटल रिजर्व्स भी कह सकते हैं, वो आपने इस तरीके से बनाना है। सो इफ यू हैव स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ऑलरेडी मेड, देन इट्स वेरी इजी टू जस्ट लिस्ट डाउन द थिंग्स उसमें, क्योंकि देखो सारे चेंजेस तो आपने यहाँ इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी,
तो फिर यू डोंट नीड टू मेक एनी चेंजेस अगेन। आप सिर्फ उनके क्लोजिंग बैलेंसेस लीजिए, उसको ऐड कर दीजिए एंड दैट विल बी इट। ठीक है। अगर हाँ फॉर एग्जांपल अगर नहीं मांगता स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी, तो फिर मैं यहीं पे ब्रैकेट डाल के शेयर कैपिटल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रैकेट डाला, ओपनिंग बैलेंस, ऐड इशू ऑफ शेयर एक्सेट्रा, ये काम होगा आपके साथ। यहीं पे एडजस्ट करके फिर मैंने क्लोजिंग बैलेंस लिख देने। बट मोर ऑफन वो आपसे ये चीज़ बल्कि यूजली मांगता ही है। ठीक है, तो नीड टू अंडरस्टैंड इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, प्रॉफिट एंड लॉस इन अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक हमें आता है, देन वी सबट्रैक्ट इंटरेस्ट, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, और फिर हम टैक्स भी माइनस करते हैं तो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी होल्डर्स। ये वाला प्रॉफिट जो है, ये वाला लास्ट वाला, दिस इज एडेड ओवर हियर। ठीक है, आफ्टर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट। अच्छा, वंस दिस इज डन, फिर आप अप्रोप्रिएशन बनाते हैं इसका इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, अब इस अप्रोप्रिएशन में होता क्या है, अप्रोप्रिएशन रिमेंबर पार्टनरशिप में भी हम वो तभी बना देते हैं कि हाउ कैन वी डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट, कुछ सैलरी में जा रहा है, कुछ कमीशन में जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा। इसी तरह कंपनी के अकाउंट्स में भी जो प्रॉफिट आपका जहां भी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो आपने रिकॉर्ड करना है। तो दो तीन चीजें हैं इसमें। आपका प्रॉफिट या तो फिर जनरल रिजर्व में जा रहा है, राइट, आपने वो प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ भेज दिया, कुछ डिविडेंड्स में जा रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डिनरी डिविडेंड्स में पे किया है, प्रेफरेंस डिविडेंड्स में पे किया है। ठीक है, अब ये पे करने के बाद यानी इसका टोटल ये आ गया तीनों का, आपने आपके पास प्रॉफिट आया था इतना, इतना आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ठीक है, ये आया था प्रॉफिट, उसमें से ये तीन चीजें आपने सबट्रैक्ट कर दी क्योंकि दैट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलरेडी। तो जो रिटेन करेंगे आप, ठीक है, अच्छा, जो रिटेन करेंगे आप वो आपने ओपनिंग बैलेंस में एडजस्ट करना है टू गेट योर क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी इसमें एक चीज जो है, ये प्रॉफिट था आपका, ये आपने जो अप्रोप्रिएशंस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया, अब दिस माइनस दिस यानी ये वाली अमाउंट माइनस ये अमाउंट शुड बी सम आंसर, राइट, लेट्स कॉल इट एक्स वाई। ये अच्छा, ये क्या है जी, दिस इज बेसिकली एक लाइन में यहाँ पे मिस कर गया, दिस इज रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर, रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी आपने साल के प्रॉफिट में से कितना रिटेन किया। ठीक है, ये वाली अमाउंट एक्स वाई है, एक्स वाई को मैं अपने ओपनिंग बैलेंस में एडजस्ट करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कर दिया एक्स एक्स माइनस एक्स एक्स, तो जो भी आंसर आएगा फिर वो इसमें एडजस्ट हो रहा होगा। ठीक है, वी कॉल इट एक्स वाई इन दिस केस, उसको मैंने अपने ओपनिंग बैलेंस जो मेरे पास साल के शुरू में रिटेन हुआ था उसमें एडजस्ट किया इन ऑर्डर टू गेट माई क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, तो जो साल का रिटेन आया दैट इज नोन एज एक्स वाई इन दिस केस। ठीक है, उतना मैंने साल में रिटेन किया, साल के शुरू में कुछ रिटेन हुआ था ऑलरेडी विच वॉज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, उसमें मैंने ये चीज ऐड या सबट्रैक्ट जो भी किया, और देन आई विल गेट टू माई क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट। ठीक है, तो ये है इसका अप्रोप्रिएशन, मीनिंग हाउ इज दैट प्रॉफिट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, और आप फिर कितना रिटेन करते हैं। तो इसकी स्टोरी ये है भाई, दिस इज योर लिमिटेड कंपनीज, एंड आई होप जो भी क्वेश्चन होगा यू कैन आस्क मी लेटर ऑन, राइट।